Good morning and Jai Hind everyone. Today we are here with NCERT exercise 10.1, which is based on construction of parallel lines. In our last classes, which we were doing as construction of triangles, which we have completed, but this exercise is totally different from other exercises which we have done it. Only the similarity is that in this we are again doing construction. Rest everything is same, but remember here construction of parallel line we are doing. In other exercises we were doing construction of triangles. So इसमें इतना changes है आपके पास कि आपको इसमें parallel line construct करनी है. Now remember, आपको याद होगा हम लोगों ने एक chapter पढ़ा था parallel lines and transversal, and in that I taught you two things कि जब भी कोई दो line parallel होती है तो दो चीजें must हैं कि होती ही हैं. First is alternate angles are always equal. Alternate angles are always equal. Whether you talk about interior or you talk about exterior, alternate angles are always equal when you talk about parallel lines. Second is corresponding angles. Now you must be thinking मैम new words बोल रही हैं, but ऐसा नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. So corresponding angles are also equal when you talk about parallel lines. Now let me tell you what are alternate angle to revise once only. Alternate angle means जब हम बात करते हैं Z shape की, it means जब हमारे पास दो lines हो आपस में like this, और इन दो lines को जब एक line cut कर रही हो तो उस line को बोलते हैं हम transversal line. और इस ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल Z के शेप में बनाया जाता है, लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. Z के शेप में जो एंगल्स बने होते हैं उन्हें बोला जाता है अल्टरनेट एंगल. सो रिमेंबर, जब भी हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं, सो अगर हम कभी भी पैरेलल लाइन हमारे पास है, चाहे वो दो पैरेलल लाइन हो या मोर देन टू पैरेलल लाइन हो या मे बी 4 पैरेलल लाइन, 5 पैरेलल, हाउ मेनी पैरेलल लाइन विल बी, उनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल बनेगा यूजिंग ट्रांसवर्सल लाइन, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है व्हेन यू हैव टू पैरेलल लाइंस, a transversal line cuts, then you will have this angle with this as corresponding, this angle with this angle will be corresponding. Fine. So corresponding angle is little different from alternate. Remember, जब हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें हमेशा मस्ट है कि होती ही है. ठीक है. सो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. We will not be using the concept of corresponding. We will be using the concept of alternate angle to construct the parallel lines. ठीक है. क्योंकि इतने सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अल्टरनेट एंगल में पेयर में हमको केवल दो ही दिख रहे हैं. दैट विल बी इजी टू फॉर्म. फाइन. सो वी विल बी मेकिंग द कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस by using the concept of alternate angles. Now write it down a question which is there in your NCERT book. Question number 1. Let me read out what is the question. The question says, draw a line, say AB, take a point C, outside it, through C, draw a parallel line to AB using ruler and compass only. Now यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज बेटा ये बोली गई है कि you have to draw a line. यहाँ पर line segment नहीं लिखा है, it is only written you have to draw a line. Now line can be of any measurement which you wanted. It can be also without measurement also. आप random कोई भी line draw कर सकते हो. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो आपके पास जो मेजरमेंट दिया होता हम वही मेजरमेंट लेते. ठीक है. सो अभी राइट नाउ इट इज रिटन दैट यू हैव टू टेक अ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट, दैट इज अ लाइन इट इज रिटन. So I am taking any line. You also take a line along with me, please. So I have taken this line. Now question में बेटा line का नाम लिखा हुआ है AB. So I am also giving the name as AB. This is line AB. Now please do first step, that is line AB.
and after that show your thumbs up so that I can move forward into it. Very good. Many students have done it. Right. Very good. Now the second line. इसी क्वेश्चन में second line क्या लिखी हुई है बेटा? That draw a line, say AB. After drawing it, what we have to take? We have to take a point C. Outside it. Outside का मतलब क्या होता है बेटा? There are three things. एक होता है on the line, एक होता है above the line, एक होता है below the line और एक होता है outside. देखो outside का मतलब above और below ही हो गया. It means हमें इस लाइन से बाहर लेना है कोई पॉइंट C. तो बाहर का मतलब ऊपर भी हो सकता है, बाहर का मतलब नीचे भी हो सकता है. अब डिपेंड ऑन यू दैट वेयर यू वांट टू मेक इट. सो राइट नाउ आई एम टेकिंग पॉइंट C हियर ऊपर की तरफ बिकॉज नीचे आई डोंट हैव स्पेस. सेम लॉजिक आपको भी यूज करना है. आपको कहां पर एक डायरेक्शन में बनाना है. अगर आप ऊपर बनाना चाहते हो ऊपर, अगर आपको नीचे बनाना है डायग्राम तो नीचे. ठीक है. तो आई एम टेकिंग पॉइंट C हियर. अब देखो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी नहीं दिया था बुक में कि आपको कितनी डिस्टेंस पे ये C पॉइंट लेना है. बट आप जब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे या 3 करेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है कि ये C पॉइंट कितने मेजरमेंट पे लेना है. ठीक है. कितनी दूर पे लेना है. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप कहीं पर भी पॉइंट C ले सकते हो. यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, वेर एवर यू वांट इट. बट एटलीस्ट गिव सम डिस्टेंस ताकि आप डायग्राम आराम से बना पाओ. ठीक है. सो जब अगर आपको डायमेंशन दिया हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ना दिया हो तो पॉइंट C को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना ताकि आपका डायग्राम इजीली ड्रॉ हो सके. ठीक है. सो दिस इज पॉइंट C. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. आवर क्वेश्चन इज टेलिंग कि हमें एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है C से जो कि AB लाइन के पैरेलल होना चाहिए. वंस अगेन रिपीटिंग. Now we have to construct a line segment or maybe a line which is passing through point C and it should be parallel to AB. हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है C से जाती हुई जो कि इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है. So let's draw this now. इस पॉइंट C को आप यहां पर किसी भी फॉर्म में ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है. स्केल से. ठीक है. slanting formula. See, I have drawn it in the slanting form because we will be using the concept of alternate angle. So I have just drawn this in the slanting form. Now I will, जहां पर जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इस लाइन पर कहीं पर कट कर रहा है, उसको नाम दे दिया मैंने O. Now you also give any of the name. It can be O, it can be M, it can be Y, it can be Z as per your requirement. Now join this and do it till here and show me thumbs up so that we can move forward. Okay, very good. Now take your compass and open it in little bit of measurement. Not so much. बहुत ज्यादा open नहीं करना है, बहुत कम नहीं open करना है, normally open कीजिए. ठीक है. Open your compass little bit. Yes. I have also taken compass. You also take this compass. I have taken this. Now see, I am not opening so much. I am not opening too much. मतलब too small. I am just taking a little bit of it. ठीक है. So now you also take it little bit of it. Not so much of big, not so much of small. हाँ, yes Kashish, you can take it of any length. हम length नहीं देख रहे हैं बेटा. हमेशा एक free hand लेना चाहिए. बहुत बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा नहीं लेना, बस याद रखो. ठीक है. सो दिस आई हैव टेकन नाउ. अब इसका क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे हम क्लास 6 वाले कॉन्सेप्ट के साथ. वी विल बी यूजिंग क्लास 6. यस नुपुर, इट्स फाइन बेटा. वी विल बी यूजिंग क्लास 6 कॉन्सेप्ट. अब देखो यहाँ पर पहले समझ लो फिर करना. आई रिपीट माई वर्ड्स वंस अगेन. पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करोगे. यू विल बी गेटिंग इट. सबसे पहले बेटा मैं पॉइंटर, याद रखो हमेशा जिस भी पॉइंट पे बनाना होता है कुछ भी चीज तो हम उस पे पॉइंटर रखते हैं और ये हमारा मूवेबल पॉइंट होता है. सो नाउ व्हाट आई विल डू विदाउट एनी मेजरमेंट, हमने ये जो लिया है ओपन किया है कंपास, उसको निडल को ओ पे रखेंगे और एक आर कट करेंगे बिना किसी मेजरमेंट के. सी जो आपको इस लाइन को, ये दोनों लाइन को आपस में कट करना चाहिए.
ठीक है, अगेन रिपीटिंग, पॉइंटर रखा था मैंने ओ पे, ओ पर पॉइंटर रखने के बाद आई हैव कट एन आर्क विदाउट एनी विदाउट एक्सटेंडिंग द कंपास, जो था पहले से मेजरमेंट वही, ओपन करके आई हैव ड्रॉन दिस। अब मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ कंपास एट ऑल। नाउ वंस अगेन आई विल बी डूइंग द सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ ओ पे की थी, वही सेम प्रोसेस आई विल बी डूइंग ऑन सी। अब इस बार भी देखिए यहाँ पर फिर से ड्रॉ करेंगे सी, ठीक है, ये हो गया। नाउ आपने क्या किया है, ओ पे ड्रॉ किया, सी पे याद किया। एक चीज याद रखिएगा, जब भी ड्रॉ कीजिएगा ओ पे तो सी पे हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में क्या होता है बेटा, अगर एक लेफ्ट में बनता है तो दूसरा राइट की तरफ होता है, अगर एक राइट की तरफ है दूसरा लेफ्ट की तरफ होता है, तो जस्ट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी आल्सो डूइंग द सेम। सो एक मैंने इस तरफ बनाया तो दूसरा वाला मैंने इस तरफ फेस रखा है। Now till here if you have drawn, show your thumbs up so that I can move forward. Okay, fine, many of you have done it, very good. Now let's move forward, how we will do that. अब इसको करने के बाद बेटा अब हम कंपास की पोजीशन को अब चेंज करेंगे, ठीक है। इस दोनों आर्क को कट करने के बाद अब हम कंपास को ऐसे ओपन करेंगे कि हम देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट, ये जहां पर ये कट हुआ था दिस पॉइंट, एंड ये जो यहाँ पर कट हुआ था दिस पॉइंट, ये दो पॉइंट, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। हाउ विल यू डू दैट, लुक एट हियर, इसको हमने यहाँ रखा, इसको यहाँ पे देखा ओपन करके कि दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। सी, मैंने ये मेजर करके देख लिया, सी दिस, ऐसे रखेंगे हम और अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना गैप है, उतना ही कम कंपास ओपन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम मेजर कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। जितना एंगल है, अगर यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल है तो हम भी यहाँ पर 70 डिग्री की कॉपी बना रहे हैं। क्लास 6 में मैंने ये सिखाया था, अगर आप भूल गए तो दोबारा से हम बता दे रहे हैं। वी आर जस्ट मेजरिंग इट बाय कंपास कि कितना गैप है इन दोनों के बीच में, मतलब कितना एंगल है। सो जितना भी एंगल है, आई एम टेकिंग द हेल्प हियर एंड सी दिस, यहाँ पर हम उसी एंगल की कॉपी बनाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट सी के आर्क ने कट किया था यहाँ पे। सो यहाँ पर हम इस पे रखेंगे इस बार कंपास and we will be making the same measurement arc cut here, you will cut here only, क्योंकि आपने यहाँ से जो मेजरमेंट किया वही आप यहाँ पे कट कर देंगे। जब आप कट करेंगे तो आपको ये मिलेगा डबल आर्क लाइक दिस, ठीक है। अब इसी डबल आर्क से होती हुई आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस विल बी द पैरेलल लाइन फॉर लाइन ए बी, फिनिश्ड। एंड आप खुद देख करके समझ जाओगे, अगर आपकी लाइन स्ट्रेट आ रही होगी तो यू विल अंडरस्टैंड दैट यस आई एम गोइंग विद द राइट प्रोसेस। इसको कोई भी नाम दे दीजिए जो भी आपका मन करे, एक्स वाई एम एन पी क्यू और वॉट एवर यू विश फॉर, ठीक है। इफ इट विल बी द राइट डायग्राम, आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी, और अगर आपका डायग्राम करेक्ट नहीं होगा तो आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज कंस्ट्रक्शन चैप्टर में यही सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। यस अमित, योर डायग्राम इज एब्सोल्युटली राइट, टोटली राइट बेटा।